Get started. Good morning. Good morning. Good morning, Shreyansh. How are you all? Mommy, are you bola mujhe? Good morning, ma'am. Yes, good morning, everyone. Yes, am I audible or visible properly? Write in a chat box firstly. पहले आप मुझे बताएंगे, am I audible and visible properly? Jignasa, it's a class of second B, beta, and Bhadresh is taking the class of second A for multiplication, beta. So you should join the Bhadresh sir class, beta, instead of my class. Yes, Jignasa. Okay. चलिए, totally audible, totally visible. ठीक है. Let's start today's session. चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. Yes, Vihan. Yes, ma'am. Say the Gayatri mantra for all of us. Everyone join your hands, close your eyes, and Vihan will say Gayatri mantra for all of us. Yes, Om Bhuvaswaha Tassavitu Vaheryam Bhargo Devaswatimahi Yojona Pachodaya. Om Bhuvaswaha Tassavitu Vaheryam Bhargo Devaswatimahi Yojona Pachodaya. Om Bhuvaswaha Tassavitu Vaheryam Bhargo Devaswatimahi Yojona Pachodaya. Om Shanti Shanti. thank you, Vihan. Thank you, beta. Thank you, Vihan. Welcome. I am absolutely fine, but today I have a sore throat. So cooperate with me, ठीक है? Yes, थोड़ा सा बेटा गले में आज थोड़ा दर्द है. चलिए. So everyone, tell me what we have done in the previous class. क्या किया था हमने previous class में? Write in a chat box. Yes, write in a chat box what we have done in the previous class. Firstly, it's a class of second B, not second A. So second A के बच्चे जो हैं, please go to your class where Bhadresh sir is taking your class for multiplication. Clear? Nirmit, this information is for you, beta. भद्रेश सर आपको वहाँ मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं और स्टार्ट कर दिया है. आप प्लीज वहां पे जाइए. ओके. यस, लाइन 3D शेप्स. नहीं, हमने लाइन कहाँ की थी? यस, 3D शेप्स. ऑफ कोर्स, कीर्तना. 3D शेप्स में हमने क्या किया था? व्हाट वी हैव डन इन द 3D शेप्स? वेरी गुड, वेदिका. ओम. Very good. Lines? Okay. Very good. Om and Vedika. Yes, very good, Kirtana. Have you done this exercise at your home? आपने घर पर की थी एक्सरसाइज? Yes or no? क्योंकि जिन्होंने घर पर की थी ना, आई एम श्योर कि उनको सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा. और जब आप डे टू डे ये काम कर लेते हैं ना, दैट इट विल बी इजी फॉर यू, बेटा. यस, वेरी गुड. तो सी आपको मैंने एक 3D शेप कराई थी. इसकी एक्सरसाइज जो है, चलिए हम एक्सरसाइज के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? नेम ऑफ 3D शेप. यस, टेल मी हाउ मेनी 3D शेप्स वी लर्न. कौन सी 3D शेप्स हम लर्न की थी? केवल आप नाम ही बता दीजिए उसका. यस, राइट इन अ चैट बॉक्स एवरीवन. Which 3D shapes we have learned? Yes, very good, Om. Q. See, Om is already told that we have learned Q. So tell me the answer
different answer. Very good, Om. Again, cone. Very good. Very good, Om. Naksh and Om. Cuboid. Very good. Okay, cuboid is done, beta. Tell me the another shape, beta. Cuboid done हो चुका है. Tell me the another shape. Cone is already done. Sarjak. Very good, Om. Sphere. Very good. Cylinder किसने लिखा? जिया. Very good, very good, जिया. Very good. ओके, तो हमने सिलेंडर ये शेप्स देखी, इनमें हमने एजेस देखे. देन वी लर्न एजेस, फेसेस एंड कॉर्नर इन दिस. व्हाट आर द फेसेस? द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट. व्हाट आर द एजेस? वेयर टू फेस मीट. व्हाट आर द कॉर्नर्स? वेयर मोर देन टू एजेस मीट. वेरी गुड. कीर्तना ने आपको पूरा दिख दिया, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन. वेरी गुड बच्चा. ओके, तो क्लियर है अभी यहाँ तक सभी को? Yes, clear everyone? Yes or no? Everyone please take a part in the chat box. अभी चैट बॉक्स में कितने बच्चे हैं और उनमें से किसका जवाब नहीं आ रहा है हमारे पास? नो, श्रेया अखबारी. श्रेया, आपका बेटा कभी भी चैट बॉक्स में किसी भी तरह की कोई वो नहीं आता है बेटा, रिप्लाई. वाई? कैन आई नो द रीजन बेटा? यदि आप दो आईडीज से हैं बेटा. Nirmit, it's a class of second B, beta. I'm repeating again. It's a class of second B, not A. Please join the Bhadresh sir class for multiplication. चलिए, परसून be active in the class. Okay, चलिए. So let's स्टार्ट द टुडेज सेशन. आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, उसी सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोलिंग एंड स्लाइडिंग. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रोलिंग और स्लाइडिंग है. बिफोर आई स्टार्ट रोलिंग एंड स्लाइडिंग, एक चीज मैं आपको बताती हूँ. रोलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग? सी, when I move this marker, see, on this surface, then it will roll. Okay, and when I move this cuboid on this surface, it will slide. So firstly you will have to understand what is the meaning of roll and what is the meaning of slide. See, when I move this marker, जब मैं इस मार्कर को मूव करती हूँ तो देखिए मार्कर यूं नहीं आता, मार्कर रोल होके आता है. रोल मतलब घूमकर, इस तरह से. जबकि मैच बॉक्स, देखिए मैच बॉक्स ऐसे नहीं आती. सी, मार्कर इस तरह से आएगा आपके पास, इस तरह से घूमता हुआ. आप इससे ज्यादा अच्छे से समझेंगे. ये मार्कर आपके पास इस तरह से घूमता हुआ है. ठीक है, जबकि मैच बॉक्स आपके पास इस तरह से आएगी. So firstly you will have to understand what is the meaning of rolling and what is the meaning of sliding. See, when a object has a curved surface, again I am repeating, curved surface की पहचान हम कैसे करेंगे? Firstly we move our palm and if it will turn then it's a curved surface. हम अपने पाम को मूव करेंगे. अगर पाम हमारा मूव हो रहा है तो ये कर्व्ड सरफेस है, और अगर हमारा पाम जो है वो मूव नहीं हो रहा है तो ये फ्लैट सरफेस है. ठीक है, अब देखिए, अगर सरफेस कर्व्ड होगी तो इस तरह से घूम के आपका ऑब्जेक्ट आएगा, इसको रोल होना बोलते हैं. ठीक है, बट अगर सरफेस फ्लैट होगी तो आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा बिना रोल हुए, उसको स्लाइड बोलते हैं.
यस, क्लियर और नॉट, पहले मुझे आप लोग ये बताएंगे, राइट इन अ चैट बॉक्स, यस और नो। सो जब कभी भी आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया जाए, जरूरी नहीं है आपको फोन या आपने अभी तक जो ऑब्जेक्ट पढ़े हैं उनसे, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाए, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ सरफेस इज फ्लैट देन इट विल स्लाइड, इफ सरफेस इज कर्व देन इट विल रोल। बस एक दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं इसके अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है इसके अलावा। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिलेंडर शेप, इट्स अ सिलेंडर शेप। नाउ टेल मी, विल इट रोल और स्लाइड? Will it roll or slide? चलिए सबसे पहले वेट बेटा, वेट। हम क्यूब से शुरू करते हैं। टेल मी, दिस इज अ क्यूब, इट विल रोल और स्लाइड? राइट इन अ चैट बॉक्स, इट विल रोल और स्लाइड? Of course, because why it will slide? Why it will slide? Why it will slide? Because yes, why it will slide? क्यों slide होगा ये? Please give me the answer. Why it will slide? क्यों slide होगा ये? Because, very good, because it has a flat surface। देखिए ये slide होगा, ठीक है? Clear? Now tell me about this object. It will slide or roll? Will it slide or roll? Of course it will slide. See, it will slide, है ना? Okay. Tell me about this object. Will it slide or roll? Will it slide or roll? Yes. Everyone is saying roll, but all are wrong. All are wrong. Because, yes, of course it is round. Of course, all are wrong. Let me explain. See, you all are seeing the curved surface, है ना? That's why you all are saying that it will roll. ये roll होगा, surface बहुत heavy है, इसलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। ये ऐसे roll होगा, है ना? Okay. But see the flat surface of this. अगर मैं यहाँ से करूँ, see, or if I am doing this, so cylinder has a both properties. ठीक है? Cylinder has the both properties. Cylinder के पास दोनों properties होती हैं, वो roll भी करता है और वो slide भी करता है. It will slide as well as roll. Depend on which surface you are using, है ना? तो सिलेंडर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये रोल भी होता है अपने कर्व्ड फेस पे और अपने फ्लैट फेस पे ये स्लाइड भी होता है। क्लियर? यस एवरीवन? यस, इट विल स्लाइड एज वेल एज इट विल रोल। क्लियर? क्लियर? चलिए, ओके। नाउ टेल मी अबाउट दिस बॉल। It will slide or it will roll? It will slide or roll? Some here is saying roll and slide. There is no flat surface, beta. So it will not slide at all. Slide पे होगा ही नहीं, ये roll ही। ये देखिए roll ही होके आएगा ये इस तरह से।
ये इस तरह से रोल होकर आएगा। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे रोल ही हो रहा है, देखिए, ठीक है, ये देखिए रोल ही हो रहा है। क्लियर? यस, ओके। नाउ टेल मी अबाउट दिस. This is a cone, as you all know. And now tell me, will it roll or slide? Will it roll or slide? See, आपको एग्जाम्पल भी दिखने. वेरी गुड कीर्तना. See, अगर आपने शेप्स अच्छे से की हैं तो आप वेरी गुड कीर्तना, एक्सीलेंट बेटा. बोथ एवरीवन इज राइटिंग एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्योंकि सबको पता है कि इसमें एक सिलेंडर शेप जैसी इसमें भी एक प्रॉपर्टीज है. इसका कर्व्ड फेस है, यहां से करोगे रोल होगा, ठीक है. बट ये जो फ्लैट सरफेस है यहां से करोगे देन इट विल स्लाइड. Then it will slide. See, because in this side it has a flat surface. Clear or not? अब मुझे ये बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? राइट इन अ चैट बॉक्स. Anyone has any problem in this topic, rolling and sliding? Okay. So now tell me the object. Tell me the name of object which has both properties. आपको उन ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जिनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं. They can slide as well as roll. Yes, tell me. Yes, Jia. मैम जब भी आप रोल का समझा रहे थे ना, उसके पहले का तभी मैं लीव हो गई थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाई थी. बेटा मैं एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ, ठीक है. बैकग्राउंड का म्यूजिक थोड़ा कम रखिए. तो कहाँ पर नहीं समझ आया बेटा आपको? वो मैम पूरा ही. कौन से शेप पे थे बेटा हम? आपको जब मैं करा रही थी, राइट इन अ चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए जिया. इट विल बी इजी फॉर यू एंड एज वेल एज मी बेटा. आप चैट बॉक्स पे एक बार लिख दीजिए कि कौन से शेप पर थे आप, तो हम लोग उसको दोबारा एक बार रिपीट कर देंगे बेटा. रोल. बट रोल कौन सी शेप थी बेटा? अगर रोल की हम बात करें, आप कौन शेप पर थे? यस जिया, कोन और सिलेंडर शेप. ठीक है बेटा, मिनट. यस, सिलेंडर एंड कोन बोथ हैव अ सेम प्रॉपर्टीज. क्लियर? जिया, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था बेटा कौन सा ऑब्जेक्ट रोल होगा और कौन सा स्लाइड होगा. आई थिंक आपका नेटवर्क दिया था सिलेंडर शेप. ओके मैम, समझ में आ गया. आगे ठीक है. प्लीज म्यूट योर माइक बेटा, मेरा थोड़ा आज गला कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है. ठीक है, तो समझ आया सबको रोलिंग और स्लाइडिंग क्या होता है? क्लियर एवरीवन? यस, ठीक है. अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे. ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, अगर सरफेस फ्लैट है तो ये स्लाइड करेगा, अगर सरफेस फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, तो वो रोल करेगा. और फ्लैट और कर्व सरफेस कैसे पहचानना है ये आपको पता है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आगे ला दिया जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट, यू कैन इजिली सॉल्व दैट. क्लियर बेटा? नाउ ओपन द पेज नंबर बेटा. यस एवरीवन, नाउ ओपन द पेज नंबर. सबसे पहले एक एक्सरसाइज थी आपकी, मुझे प्लीज टेल मी पेज नंबर. आई थिंक आप लोगों में ये 148 होगा. यस एवरीवन, योर बुक दिस पेज नंबर विल बी 148. शायद आपकी बुक में 148 पेज नंबर होगा. यस, राइट इन अ चैट बॉक्स. टेल मी द पेज नंबर ऑफ दिस. है ना 148 है ना आप लोगों में? तो सी, आपको ये अभी मैंने उस दिन आपको बताना भूल गई थी, आपको ये एक्सरसाइज होमवर्क के अंदर करनी है. ठीक है, इस एक्सरसाइज में देखिए ये कोन है, आपको पहचानना है कोन में कॉर्नर्स कितने हैं, फेस कितने और एजेस कितने हैं. फिर आपको ये मैच बॉक्स क्यूबॉइड करवाया ही था, आपको पहचानना है गिलास की शेप क्या है, फिर उसमें बताना है कॉर्नर्स, एजेस और फेसेस कितने. सेम यही एग्जाम्पल हमने किया था. और ये यहाँ पे अर्थ एज अ स्फीयर ले रखी है, तो आपको इसमें बताना है. ये आपको होमवर्क के अंदर करना है. क्लियर? Exercise 1.4 you will have to do in your homework.
Clear? Okay? Yes or no? ठीक है, चलिए. Okay. Now exercise. See. Yes, Vihan, please write in a chat box, बेटा. अब सी एक्सरसाइज 2 है 146 पर. ये एक्सरसाइज है, ठीक है, 146 पर. ये एक्सरसाइज है 146 पर. रियान प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स बेटा, क्या आपका डाउट है. एक्सरसाइज 2 में देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है. आपको क्या करना है, लुक अराउंड योर क्लासरूम एट होम, व्हाट ऑब्जेक्ट कैन यू फाइंड दैट आर शेप लाइक द फॉलोइंग सॉलिड. आपको क्या करना है, आपको अपने घर में चारों ओर देखना है और बताना है कि कौन कौन से शेप है आपके पास क्यूबॉइड में, कौन सी शेप आपके पास स्फेयर में है, कौन सी सिलेंडर में है, कौन सी कोन में है और कौन सी क्यूब में है. क्लियर. एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 2.1 ये दोनों आपकी होमवर्क में. क्लियर बेटा. चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2. देखिए ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, ये वाली एक्सरसाइज. एवरीवन पेज नंबर आप बता दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में, ताकि सब बच्चों के लिए इजी हो जाता है थोड़ा सा. चैट बॉक्स में आप पेज नंबर बता दीजिए. मेरे में 145 है. यस, एनीवन प्लीज टेल मी द पेज नंबर, एग्जैक्ट पेज. 147. ठीक है, जिया इज सेइंग कि 147 है आप लोगों में पेज नंबर. क्लियर. तो देखिए रुद्र एंड संजय इज सेइंग 146 है. कोई बात नहीं, किसी में 147 हो और किसी में 146 हो. 146 है. ओके चलिए 146 जिया. तो पेज नंबर 146. ठीक है, पेज नंबर 146 पे आप देखिए, आपको यहाँ पर कुछ शेप्स हैं. पहली शेप है एक, आई थिंक ये कोई इग्लू टाइप में ही कुछ बना है. ठीक है, बी शेप में बटर बना है, बटर का बॉक्स है. सी शेप में एक जार है, बी शेप में एक बॉक्स है और ई शेप में वाटरमेलन है. ठीक है, अब आपको मुझे बताना है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5. आपको बताना है मुझे जो फर्स्ट शेप है वो किस नंबर से मैच करेगी. यस, द फर्स्ट शेप विल बी मैच्ड बाय दिस नंबर. बाय विच नंबर. यस, जो ए शेप है वो आपकी सी से मैच करेगी और उस शेप का नाम है कोन. आप शेप का नाम भी लिखेंगे बेटा साथ साथ. ओके ओके. नाउ टेल मी विच शेप इज सिमिलर टू बी. बटर यहाँ पे जो है वो किसकी सिमिलर है और कौन सी शेप है वो. साथ में आप शेप का नाम भी लिखेंगे बेटा. वेरी गुड जिया. और क्यूबॉइड. यस, अब सी शेप आप मुझे बताएंगे. सी शेप इज सिमिलर टू. यस, and its shape is cylinder. Very good, Naksh. Okay, now D shape. D shape is similar to cube. Very good. And E shape is similar to. Yes, E shape with the similar to. Yes. Okay. Everybody, have you done? When you done, then write in a chat box done.
When you done, please write in the chat box, ma'am done. Yes, done. Everyone, it's done or not? No. Okay, Kavya, do it. Yes, write in a chat box, everyone, and do it. Only Naksh is saying ma'am done. What about the others? Only and only Naksh is saying ma'am done. Naksh Aghola. Okay. ओके, चलिए इसी के नीचे अब एक और एक्सरसाइज है। जस्ट इसके नीचे एक एक्सरसाइज है आपकी 2.3 इसी के नीचे एक्सरसाइज है। क्या कह रही है वो, ये वाली एक्सरसाइज है। इसके जस्ट नीचे आप देख लीजिए आपकी बुक कहाँ है। सी दिस एक्सरसाइज आपकी बुक में कहाँ है वो देख लीजिए बेटा आप, ये एक्सरसाइज, ठीक है। यस, एवरीवन टेल मी द पेज नंबर ऑफ दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। 147, ठीक है। नक्श सिंह 147 पर है वो। थैंक यू एवरीवन, 147 पे है ना। ट्रेस द बेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड राइट द नेम ऑफ द शेप फॉर द बेस। आपको क्या करना है? ओके एवरीवन, स्टॉप द चैट राइट नाउ। ट्रेस द बेस, इसके लिए ट्रेसिंग फैक्ट पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? ट्रेसिंग फैक्ट पढ़ते हैं। और ट्रेसिंग फैक्ट क्या कहता है? ट्रेसिंग आउट द शेप्स कह लीजिए आप, ट्रेसिंग फैक्ट कह लीजिए कि ये एक 3D शेप है आपके पास, ठीक है। दिस इज अ 3D शेप। बट अगर आप जब इस 3D शेप का बेस बनाएंगे, जब इसका बेस जहां पर ये, जिस पर ये टिका है, यूं कह सकते हैं, जब आप इसका बेस बनाएंगे किसी भी 3D शेप का, तो उसका बेस हमेशा फ्लैट होगा। सी, अब आप इसका बेस बनाइए, शेप नहीं केवल बेस, तो इसका बेस कैसा आएगा? यस, टेल मी एवरीवन, राइट इन द चैट बॉक्स। फ्लैट क्या होगा? सर्कल। इसका बेस सर्कल होगा। शेप 3D है लेकिन इसका बेस क्या होगा? सर्कल। सेम एज इसका बेस क्या होगा? यस, राइट इन द चैट बॉक्स। टेल मी अबाउट द बेस ऑफ दिस। ऑफ कोर्स रेक्टेंगल। देखिए बेस तो फ्लैट सरफेस ही आ रही है, ठीक है। इसका बेस बताइए मुझे। नो बेस, वेदिका आई एम सेइंग बेटा, इसका बेस क्या होगा? बेस स्क्वायर। वेरी गुड, समझ आया। क्वेश्चन है कि अगर आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का बेस बनाते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन यू ड्रॉ अ बेस ऑफ एनी सॉलिड और 3D ऑब्जेक्ट, देन बेस विल ऑलवेज इज अ फ्लैट शेप। बेस हमेशा फ्लैट शेप होगा, ठीक है। इसी में आपको एक एक्सरसाइज दी है बेटा। सी, आपकी में डाइज है, डाइज सबने देखी है ना। अब आप सोच के बताइए कि डाइज का बेस कैसा होगा?
टेल मी द बेस ऑफ द डाइस. ऑफ कोर्स स्क्वायर. सेकेंड है आपको चौक. चौक खुद क्या है, एक सिलेंडर शेप है. चौक ऐसी होती है ना, चौक खुद एक सिलेंडर शेप है, लेकिन चौक का बेस कैसा होगा. यस, देखिए चौक का बेस तो सर्कल ही होगा. बेस सर्कल होगा चौक का. इरेजर का बेस कैसा होगा, हम एक नॉर्मल नटराज के इरेजर की बात कर रहे हैं. इरेजर का बेस कैसा होगा, राउंड नहीं होगा बेटा. राउंड और सर्कल तो अलग अलग चीजें होती हैं. नक्श, ऑलवेज यूज सर्कल बेटा. यस, इरेजर का जो बेस होगा कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा. यस, ओके. और नाउ बॉटल कैप. बॉटल कैप का बेस कैसा होगा, टेल मी द केस बेस ऑफ द बॉटल कैप. सर्कल. बॉटल कैप का बेस कैसा होगा, सर्कल होगा. ठीक है. तो जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसका बेस कैसा होगा, तो ऑलवेज रिमेम्बर बेस हमेशा एक फ्लैट फेस ही होगी, फ्लैट शेप ही होगी. क्लियर? यस और नो, राइट इन अ चैट बॉक्स. क्लियर? अब नाउ कम टू दिस एक्सरसाइज. देखिए इस एक्सरसाइज पे आ जाइए बेटा. एक तो मुझे पेज नंबर बताइए आपकी इस एक्सरसाइज का. प्लीज 147 मेरी में है, आप अपनी में बताइए. यस, टेल मी इन योर. 149. 149 की 2.5 एक्सरसाइज. ओके, इसकी 2.5 आप घर पर करेंगे. ठीक है. इसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज रोल करेगी, कौन सी स्लाइड करेगी. कॉन्सेप्ट आप सबको पता ही है. क्लियर? यस और नो, इज इट क्लियर? 149 का आपको बताना है कि कौन सी स्लाइड करेगी और कौन सी रोल करेगी. अटेंडेंस में आप लोगों की लगा दूंगी बेटा. मेरे गले में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू टेक योर अटेंडेंस बेटा. ठीक है. तो ठीक है, नो एवरीवन, नाउ यू कैन लेफ्ट. अटेंडेंस आप लोगों की लग जाएगी. ठीक है. एनी प्रॉब्लम इन टुडेज सेशन, किसी को आज के सेशन में प्रॉब्लम हो तो राइट इन अ चैट बॉक्स बेटा. एंड प्लीज स्टे हियर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. आज के सेशन में हमने रोलिंग और स्लाइडिंग किया था. यस, एनी डाउट? नो डाउट. चलिए, so everyone, it's time to say goodbye. Happy Raksha Bandhan to all of you. Enjoy the festival. Thank you, Yug. Okay everyone. चलिए, bye everyone. Bye beta, bye. Okay, happy Raksha Bandhan to all of you beta.